Wait a second. Simon also joining. Okay. So, hello Sandeep ji. Yes, sir, बताइए. Can you just brief us about aquatic phenomena because we are meeting for the first time? Yes, sir. So can you tell us something about yourself? Means which all projects you are doing? What is your background like? So see, we are doing from last 8 years this service, and in the swimming maintenance and all, we are from last 15 years. Okay, and present we did in Mantri also, and Sadhana Infinity School also for growing work, epoxy, and in Mantri we did that one also, tile work also there, and recently last year we did build 2 swimming pools new and repair also. I gave you the details also, sir, in the paper. We built the new swimming pool also recently, here. Where exactly Here, have you done these new ones? Sorry? Where exactly you did these new ones? New one is near this one, Bandaguda side. Okay. Is it a society or a club? What is it like? No, it's a commercial pool. It's a commercial pool only. And last year we did in SNS pool, near Koko. Okay. Okay. Any pool that you have done as a revamp that we are talking about as far as our society is concerned, similar to something where the pool was already Yes, sir, we you did a revamp of that. Yes, we did in Mantri also, same that one. Okay. What is the size of that pool where you did in Mantri? That you did in Mantri? That is 22 meters by 10 meters. How many SFT? If you can give us the SFTs, that would help us. Around 2,200 square feet is that one. Okay, so almost like same, from little small. Okay. Yes, it's same only almost. Okay. So Around 25 meters. All the pools will be more than 20 meters only, 25 meters around. Okay. So Sandeep ji, can you just take us through as to what would be, you have seen our pool, right? Yes, right. So what is the process that you will take? Means क्या काम रहेगा इसमें? What are the steps that you are going to take if suppose we get about this contact? सर देखिए, स्टेप्स के लिए पहले हम लोग इसको चिपिंग करके पूरा टाइल्स निकाल देंगे इसमें से. वेट अ सेकंड, मिस्टर आइमर जॉइन हियर. Hi everyone, good evening. Yes, sir. Hi. That Toby, yeah, he is with me only. So we are in different places now. Okay. 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 जी सर. So देखिए सर, अभी तो हम लोग फिलहाल स्टार्ट करेंगे वर्क. पहले टाइल्स का पूरा चिपिंग करके निकालेंगे सर. उसके लिए थोड़ा सा टाइम पड़ेगा क्योंकि आराम से निकालना पड़ेगा क्योंकि वाटर लीकेज का प्रॉब्लम आ सकता है. फिर उसके बाद हम लोग वाटर प्यूरिफाई करेंगे. वाटर प्यूरिफाई करने के बाद एक बार चेक करके देन विल गो फॉर टाइल लेइंग. ओके, विद द 335 केमिकल नंबर, लैक्रिकेट वन. एंड उसके बाद इपॉक्सी होगा SP100 से. एंड वी आर यूजिंग दैट FYK लैक्रिकेट ओनली. उसके बाद हम लोग ये लाइट चेक करेंगे, वायरिंग्स एंड ऑल, एंड नोजल्स, पाइपलाइनिंग, ये सब चेक करने का. देन फिल्ट्रेशन आल्सो. फिल्ट्रेशन में मैं आपका देखा सर, उसमें सैंड तो लूज ही है. देन वी हैव टू चेक दैट उसके अंदर नोजल्स रहते हैं, लैक्टिक एड्स बोल के रहता है अंदर. वो ब्रोक तो नहीं हो गया 90%, तो फिर भी 10% चांसेस है. एंड मोटर्स आल्सो वी सर, उसमें 50% मोटर्स गए सो है, खराब है. एक ही मोटर चल रहा है बस. Okay. तो उससे 70% तो रिप्लेस हो जाएगा. Okay. उसको ठीक कर सकते हैं हम लोग उसको, मोटर्स को. So संदीप जी, अगर if I have to start from the beginning से आपने बोला कि टाइल्स आप चिप करके निकालेंगे, so what is the process? Is it a manual work or will you use machines and how much time will it take? इसमें मैनुअल आल्सो स्मॉल
हेलो वहाँ पे हो जाएगा। चलिए, आपका हैंग हो गया। संदीप जी आपका वो हैंग हो गया कॉल। हेलो जी सर। हाँ, या so- आपका पूरा आप अगर बात कर रहे थे तो वी कुड नॉट हियर एनीथिंग, आपका हैंग हो गया था। So can you say whether it is manual, machine? मशीन सर, मशीन Okay. Okay. तो मशीन एंड सब। so ये machine का जो है, how much time will it take to remove all the tiles? What is it like? सर 3 days, अप्रॉक्स 3 days, अराउंड 3 days में हो जाएगा। Okay. And 2 to 3 days। हमारे हिसाब से 3 to 4 days because of brush chip is the very important. चिपिंग करते करते हम ब्रशिंग करते जाएंगे और चिपिंग भी हमको बैठ के करवाना पड़ेगा ताकि ये इस चिपिंग के दौरान हमारी जो पूल की वाटर बेसिस यानी जो पहले की वाटर प्रूफिंग डिस्टर्ब ना हो। so I was coming to that. So when you were saying that it will be machine, what are the chances that the slab beneath the tiles is or the plaster beneath the नहीं। tiles doesn't get disturbed? सर ओके सर, ये मशीन छोटी मशीन रहती है, लाइक स्मॉल मशीन। तो very बड़ा वाला small. ड्रिलिंग मशीन है, वेरी स्मॉल not- स्मॉल मशीन है, लाइक ए मैनुअल ओनली, इट्स टाइप ऑफ मैनुअल ओनली। Okay. So basically आप tiles निकाल लेंगे. It will take. You are saying that should take about 4 days, right? यस यस तो बाकी का जो एडेसिव रह जाता है उसके नीचे, तो वो सब आप कैसे निकालेंगे? Some leftover, say anything, say adhesive or whatever the cement beneath that. इसके साथ निकल जाएगा सर वो भी। ब्रशिंग So brushing आपके iron steel brushes brush से- also. That's why we take 1 or 2 days extra. हाइडर के स्ट्रॉन्ग वाले ब्रश आते हैं स्टील के, हम्म, वो स्टील के ब्रश से जैसे मशीन वर्क खत्म होगा फिर हमको ब्रशिंग करवाते हुए वूल आपने एक दिया है कि एडेसिव ग्राइंडिंग, की सी रिमूव होते जाती है। फिर उसके एडेसिव ग्राइंडिंग का एक आपने दिया हुआ है। यस जी सर, वहाँ वही उसके लिए वो ब्रशिंग से हो जाएगा उसके लिए। ओके ओके। सो प्लास्टर डैमेज नहीं होगा बोल रहे हैं। नहीं होगा, इंशाल्लाह 100% नहीं होगा, नहीं। So if I were to know under the beneath the tiles normally वो स्लैब कितने इंच का होता है? आपका जो बिल्डिंग स्लैब 5 to 6 इंचेस होगा 5 to 6 इंच मैक्सिमम। होगा। हम लोग इधर 6 इंचेस के तो स्लैब आते हैं, जितने भी स्लैब है कंस्ट्रक्शनल सिविल में 6 इंचेस स्टैंडर्ड वे। सो कोई बिल्डर अगर मान के चलिए चीटर रहेगा तो 5 इंच से छोटा कोई स्लैब डालेगा ही नहीं। ओके ठीक है। तो वंस यू रिमूव द टाइल्स इसके बाद क्या प्रोसेस होगा? आप वाटर प्रूफिंग करेंगे, राइट? जी सर जी, वाटर प्रूफिंग करेंगे। कितने कोट रहेंगे? सिंगल कोट, डबल कोट, हाउ मेनी कोट्स विल बी देयर? अगर हम लोग इसके ऊपर ज्यादा कोट करेंगे तो सेटिंग आउट हो जाएगा पुराने वाले का नया वाले का। सो 2 कोट ऑफ वाटर प्रूफिंग एंड आफ्टर और दैट डिपेंड ऑन योर चिपिंग के बाद चेक कर लेंगे, बट 2 कोट वाटर प्रूफिंग तो 100% करेंगे। so 2 coats आप करेंगे। ओके, देन आफ्टर दैट देयर विल बी द टाइलिंग, राइट? Tiling. यस यस। ये वाटर प्रूफिंग के पहले क्या आप फिर से प्लास्टरिंग करेंगे? सीमेंट प्लास्टरिंग विल इट बी डन? नहीं प्लास्टिंग करेंगे तो आपका हमारा जो और आपका पुराने पुल का गेज को डिस्टर्ब करेगा, ओके। फ्लोर को डिस्टर्ब करेगा, ऊपर की फ्लोरिंग वाली जो टाइल है जो ग्रेनाइट है वो सबको डिस्टर्ब करेगा कि हम इसके ऊपर अगर प्लास्टिंग वाटर प्रूफिंग करें तो। इसीलिए तो हम वो कोर चिपिंग करवाएंगे ताकि पुरानी सेटिंग को खराब ना करें।
लेकिन जब आप टाइल्स निकालेंगे, चलिए प्लास्टिक करेंगे तो फिर फिज वर्निंग चढ़ जाएगा। लेकिन जब आप टाइल्स निकालेंगे तो वहां पे अंडुलेशंस नहीं होंगे, विल दैट बी वेरी इवन द सरफेस? तो वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। हाँ वॉइस, हेलो। जी सर, आज मैं ये बोल रहा था कि सपोज आपने टाइल्स निकाल दिया एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस विल देयर बी एनी अंडुलेशंस व्हिच विल बी फॉर्मिंग? नहीं कुछ नहीं हुआ सर प्रॉब्लम। So it will be all plain. So nothing, no issues with the. So no cement plastering will be done to do away with the undulations. Okay. No, not required. जी। तो उसके बाद आपने बोला कि waterproofing will take how many days? Is it 2 days? What? How many days will it take? One day. 1 day लगेगा. Okay. उसके बाद फिर टाइल लेंगे, right? Yes sir. अच्छा, ये जो टाइल्स आपने Yeah, tile लेंगे। आपने हमारा टाइल्स देखा हुआ है, right? You have seen our tiles that we have. जी sir. Okay. Yes sir. Yes. Okay. From your perspective, how good are these tiles? It's good only sir. अभी आपको मिल गए ना 1 by 1। हम लोग तो प्रिफर कर रहे थे लाइक 12 by 12 इंचेस का। Okay. लेकिन आपके पास वो है तो चला ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये 7-8 ईयर्स तक तो कुछ भी नहीं होगा। Okay. अगर आप पानी भर के रखें तो 12 ईयर्स तक भी कुछ भी नहीं होगा, 10 to 12 ईयर्स। अच्छा, okay. अच्छा, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई पूल पूरा खाली हो फिर हाँ चिपिंग हो जाए, फिर आप नहीं। बोलेंगे संदीप जी को सेम इश्यू होता है। मैंने आपको बोला आपकी पानी। टाइल भी अच्छी है, अभी आप लोगों से जो मिस्टेक हो गया कि वो टोटली पानी क्लीन कर दिया उसमें से। हाँ। Yeah. पानी खाली नहीं रखा Maximum मैं। दूध ऐसे ही होता है। Okay. So my next question is, ये जो आपने grouting बोला है, so there are two types of grouting. One is epoxy, other is cementitious, right? So Yeah, which epoxy one we are do you doing. suggest? इपॉक्सी भी हाउ टू डू सर। इपॉक्सी वो भी SP 100 से ही करेंगे। इपॉक्सी इज बेस्ट। So कुछ लोगों ने ऐसे भी बोला है कि वो कि FP कर दें। अच्छा, तो cementitious grout हम करते नहीं है स्विमिंग पूल के अंदर, या और we feel that epoxy is a much better feel? नो इपॉक्सी इज बेटर बिकॉज उसके टाइल्स में गैप भी रहेगा ना सर आपको, और ये वाटर प्रूफिंग रहेगा इपॉक्सी। अभी थोड़े पूल्स को भी जैसे अभी टाइल्स है, जैसे अभी लीकेज प्रॉब्लम हो रहा है तो इपॉक्सी करे तो भी रुक जाता है पानी, वाटर प्रूफिंग। हाँ, ऐसे। अब कोई फार्म हाउस है मान के चलिए, या मेरा या आपका फार्म हाउस है, हमको बजट में भी क्रॉस जाना है तो हम लोग व्हाइट सीमेंट भी यूज कर देते हैं। लेकिन उसका लाइफ रहता है उतना ये सीमेंट नहीं का है। और इपॉक्सी का, किसका लाइफ ज्यादा होता है? हाँ सर, अभी देखिए मैं Epoxy is the best standard way. इपॉक्सी रहता है सर। अभी देखिए मैं 2022 कोविड के टाइम में मंथली सेल स्टाफ में किया था। आपके पास वो एम्प्लॉय भी उसको पूछिए, वो बहुत से कम में किया था, लेकिन उसका लाइफ चल गया, 1 ईयर तक चले गया वो। उसके बाद में इपॉक्सी किया था, फिर वो भी अभी चल रहा है। ऐसा है, इपॉक्सी इज बेस्ट। So epoxy is best is what you are saying. Okay. यस ये वो And, निकलेगा ही नहीं। अच्छा, एक चीज है जो मैं देख रहा हूँ, पहले के जो 3 लाइन आइटम्स हैं, जैसे डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल ऑफ टाइल्स, एडहेसिव ग्राइंडिंग एंड जी। वाटरप्रूफिंग, ये तीनों का अगर मैं देखता जी। हूँ, द यूनिट कॉस्ट व्हाट यू हैव गिवन इज क्लोज टू अबाउट 125 रुपीस। यस जी। Okay. So I have some other vendors quote who has quoted about 67 rupees. तो इतना फर्क क्यों है आपका? Okay. उसमें? नहीं, वो सिर्फ इपॉक्सी का होगा सर उसमें। नहीं। इपॉक्सी कर रहे होंगे बस। मैं सिर्फ 3 ही आइटम देख रहा हूँ, जो वन इज अ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल ऑफ टाइल्स, 40 उसका Okay. आपका 40 है, उनका 20 है, मैं लाइन से पढ़ रहा हूँ। ओके एडहेसिव ग्राइंडिंग आपका 15 है, उनका 25 है, एंड वाटरप्रूफिंग आपका 70 है और इनका 22 है। तो अगर मैं इनका ऐड करता हूँ तो इट कम्स टू अबाउट 67 एंड आपका आता है 125। सो व्हाई इज देयर सो मच ऑफ डिफरेंस? नहीं, अभी देखिए केमिकल आल्सो वी आर यूजिंग द MYK ओनली। उसमें आपको अभी आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें अगर केमिकल ही लगेगा, अब वो रेट बोल रहे हैं ना, उसका केमिकल का ही कॉस्ट है उतना। अब जो आगे वाला है उतना हमारे को केमिकल का प्राइस ही जाएगा उसमें। जी
So आपके या हिसाब फिर से यहाँ पे chemical दूसरा क्या होगा। is 125 justified enough और the 67 is like ऐसे ही उन्होंने कुछ तुक्का दिया है? हाँ अभी देखिए सर, नहीं, इपॉक्सी किसी को बढ़ा ग्रोटिंग के के लिए किसी में निकाल देते। हाँ वही वैसा कुछ होगा, Sorry? क्योंकि आप तो इपॉक्सी टेक ग्रोटिंग किसी में बढ़ाएंगे, किसी में निकाल नहीं। देंगे। हाँ, बोलो। ये balance ही करो। नहीं, अभी देखिए इपॉक्सी ग्राउटिंग, ओनली इपॉक्सी ग्राउटिंग के मार्केट में 75-85 के ऊपर ही चल रहा है। हम्म, हाँ, इपॉक्सी ग्राउटिंग अगर मैं देखता हूँ आपका 75 है, उनका 120 है। जी हाँ देखिए, देन केमिकल आल्सो सेम देयर। देखिए वहाँ पे आप देखो, कॉस्ट करके देख लीजिए, आप उतना ही होगा। हम्म, नहीं, और बॉटम हमारा लाइन ही कॉस्ट कम रहेगा। आपका थोड़ा हाँ। ज्यादा है, उनका थोड़ा कम है। ओके, किसमें सर? हम सेफ एंड सिक्योर चलते, इसलिए 5 to 10 रुपीज ज्यादा रखते हैं। नहीं, पर ताकि जैसे नाम खराब ना हो। जैसे आपने इपॉक्सी ग्राउटिंग का 75 लगाया है, ये MY के SP 100 करके है, तो इसमें भी कुछ अलग वैरायटी रहती है क्या क्वालिटी के हिसाब से? अभी देखिए 99 पर मार्केट में चीटर्स बहुत है। देखिए सर, 99% स्विमिंग पूल जो बना रहे हैं MY की SP ग्राउटिंग 99%, ओके, एंड टाइल लेइंग के लिए MY के लिए 335 यूज करते हैं केमिकल, नंबर 335। हम लोग वही करेंगे, आप किसी से ही पूछो, अगर अच्छे से अच्छा कंपनी वाला भी यही सजेस्ट करेगा आपको। अच्छा, ओके, सो दिस टाइल लेइंग एंड इपॉक्सी, ये कितना टाइम लग जाता है इसके लिए? सर इसके लिए आप देखिए अप्रोक्स 8 to 10 डेज पकड़ के चलिएगा, क्योंकि रेनी सीजन है ना, थोड़ा उस Considering that it is रेन all, आ गया तो थोड़ा सा considering that the weather is good, so how many days will it take normally? 10 days, 10 days. 8 to 10 days। अगर बारिश आ गया तो then it will get What something? extended. ये अपना टाइल लेइंग को, टाइल लेइंग के लिए बता रहे हैं सर, टाइल लेइंग एंड ग्रोटिंग। So my next question is that क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, so how will that impact? Suppose आपने आज टाइल लेइंग और इपॉक्सी आपने स्टार्ट किया है, क्योंकि एक दिन में तो पूरा नहीं होगा, करेक्ट? So how will you go about? Is it mandatory that पूरा टाइल लेइंग एक ही साथ करना है, or that can be done in bits and pieces? हो जाएगा सर, एक ही बार हो जाएगा सर, उसमें प्रॉब्लम। नहीं, फिर आप 10 दिन बोल और रहे हैं ना, रेनी का मैं- सीजन है तो नहीं मैन पावर, अगर हम उस टाइम पे वेदर के कंडीशन से मैन पावर भी ज्यादा लगा देंगे उसमें, नो प्रॉब्लम। हमारा तो कम डेज में ही हो जाएगा, मैं आपको ज्यादा बढ़ा के बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, माई डाउट है क्या है कि ये जो टाइल लेइंग है प्लस इपॉक्सी है, will the entire pool be done at one go or will it be done in parts? नो एंटायर It will be done at one go. यस वन रो। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं जो देख रहा हूँ आपके इसमें, आपने प्रेशर ग्राउटिंग आपने बोला है नॉट रिक्वायर्ड या नॉट मेंशन, यू आर नॉट गिवन एनीथिंग। ओके, यस, ये प्रेशर कोटिंग का जरूरत नहीं है सर यहाँ पर कुछ भी। अच्छा, अभी इसमें जी, हाँ, बोलिए। अभी पूरा पर निकाल के कर रहे हैं ना, पूरा निकाल के कर रहे थे, उसका रिक्वायर्ड नहीं है उसमें। हम्म, अच्छा, and this drilling, nozzle fixing, overflow drain repairs, anti-rust treatment of MS parts, ये सब आपने नहीं दिया है? नहीं दिया है, मेल किया था, देखिए नॉर्मल मेल किया था आपको बाद में। लमसम है वो। लमसम दिया है आपने, ओके, फाइन। जी अच्छा, जब आप पूरा टाइल्स निकाल देंगे, so will you be checking the plumbing line also with that? यस अगर sure. कुछ, sorry, go ahead. यस सर, प्लम्बिंग वर्क पूरा चेक होगा, नोजल्स, पाइपलाइन एंड सब चेक होगा उसमें। So any changes to be done, आप उसमें Everything मतलब edited. changes कर देंगे उसमें, जो भी अगर कुछ करना है वहाँ पे you will be doing it, right? जी सर जी।
ओके 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 फाइन। अच्छा नाउ कमिंग नाउ टू द प्लम्बिंग वर्क, अभी हमारे पास जो फिल्टर्स है, कितने फिल्टर्स है आपने देखा है हमारा? 2 फिल्टर्स है सर। फिल्टर्स दो हैं, सो नहीं फिल्टर्स जी। फिल्टर्स दो हैं, सो व्हाट इज द कंडीशन, उसका क्या है, उसके अंदर क्या जाएगा? बेसिकली द फिल्टर मीडिया इज व्हाट, सैंड? उसमें देखिए सैंड आएगा, सैंड और नीचे उसके नीचे लैटरेट्स रहेंगे, हाँ। एक नोजल्स बोलते हैं उसको, लेकिन उसका नाम है लैटरेट्स है। ओके वो शायद ब्रोक भी हो सकते हैं जैसे सैंड निकालते वक्त, और उसके नीचे हब रहता है। हब तो डैमेज नहीं होगा, नोजल्स भी 70% तो नहीं होंगे, अगर हुए तो उसको चेंज करना पड़ेगा उसके ऊपर। और उसके ऊपर एक मल्टीपल वॉल रहता है, मल्टीपल वॉल भी रहता है, उसको भी एक बार चेक कर लेना पड़ेगा हमारे को अच्छे से, लेकिन वो भी क्या कॉस्ट अराउंड एक्वास्टार का है ना आपका, वो भी अराउंड लाइक 20,000 अबव रहता है, और उसको भी एक बार अच्छे से, वो तो अच्छा ही है, फिर भी मैं बता रहा हूँ 70-80% तो अच्छा ही है, कुछ नहीं होगा, उसको हम रिपेयर भी कर सकते हैं जो है। एंड दिस सैंड मीडिया विल बी चेंज कंप्लीटली, राइट? द फिल्टर मीडिया विल बी चेंज कंप्लीटली। यस यस यस, पुराना पूरा निकाल के Yes, आप yes. यहाँ लगाएंगे। हाँ जी जी, पुराना निकाल के पूरा नया चेंज कर देंगे। अच्छा, ये जो फिल्टर मोटर है, ये हमारे पास कितने मोटर्स हैं, फिल्टर मोटर्स? वहां पर मैं 3 देखा हूँ सर। हाँ 3 है, उसमें से कितने काम कर रहे हैं, आपने आपको एनी आइडिया? हाँ 3, बस एक में आवाज आ रहा है, बाकी के सब बंद है उसमें। आपने 4 लिखा है जी। वो भी पानी एक काम खींच रहा है, कर रही नहीं है पर तो 4 संदीप जी आपने 4 लिखा है। एक काम कर रहा है, वो भी पता नहीं, अच्छा उसमें 4 हो गए हैं फिर। आई 3 या 4 थिंक जैकुजी में 2 है, एक बाकी में एक ही है। 2 राइट, 2 अपोजिट। जी 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 जी, तो ये जो उसमें फिल्टर, एक ही काम कर रहा है, लेकिन वो भी पता नहीं वाटर खींचेगा या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ। तो पानी नहीं है ना। अगर एक ही काम कर रहा है, बाकी के 3 काम नहीं कर रहे हैं, देन व्हाट वुड बी द एक्शन प्लान? आर यू गोइंग टू गेट अ न्यू, हैव यू बजटेड फॉर अ न्यू मोटर्स यहाँ पे? जी सर, न्यू मोटर्स का भी मैंने दिया है, वहाँ पर 45,000 दिया है। ओके, अगर उसमें आपको देखिए 90% तो रिपेयर में हो जाएगा। ओके इफ रिक्वायर्ड हम लोग हमारा If ट्राई required, then only करेंगे we go best। for it. अगर वो सर्विस हो गया तो हम सर्विस करके चला लेंगे, नहीं हो सका तो लास्ट 10% आप उसको मान के चलिए कि चेंज करेंगे। ओके, अगर आप 90% तो रिपेयर कर देंगे। ओके, अगर सपोज रिपेयर नहीं हुआ तो आप नया लगाएंगे बोल रहे हैं, तो विच ब्रांड ऑफ जी, मोटर जी। विल यू बी यूजिंग इट? सेम एक्वास्टर ओनली विल गो इट, एक्वास्टार। सेम जो आपके पास जो मोटर है। Okay. जी एक्वास्टर ओनली। कौन सा मॉडल है जी? सेम मॉडल डेविक है 25 मॉडल ही रहेगा आपको, तो यार यही मॉडल सेम मोटर रहेगा। सो इट विल कम विद द प्री फिल्टर। यस यस, स्विमिंग पूल मोटर विल बी लाइक फिल्टर ओनली। अच्छा ये एक्वास्टार किधर का है कंपनी? किधर ये है? बेंगलुरु बेस है मैम, बेंगलोर बेस्ड। बेंगलुरु। सो सर्विसिंग एंड ऑल दैट, सपोज कुछ लगेगा तो सर्विसिंग एंड ऑल दैट इज हम लोग नो प्रॉब्लम। जी जी कर देंगे, वो लोग कर देंगे। जी जी, हम लोग कर देंगे। कर देंगे। हम लोग अभी कितने अपार्टमेंट्स में हम- देखते हैं मैक्सिमम एक्वास्टार से रहता है, जहाँ जी। भी जल गए वो हम लोग खुद करवा देते हैं। सेट हो जी। गया तो करवा देते हैं, और नहीं हो सका तो इफ लास्ट चांस में उसको चेंज कर देते हैं। अच्छा ओके। सर ये आप मोटर जो बोल रहे हैं, कितनी मोटर मतलब टोटल अपने को लेना पड़ेगी? बोल रहा है एक काम कर रहे हैं, एक काम नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने तीन जो में इसको 45,000 लाना है, वो तो एक इसका मतलब कि एक टूटा। वहाँ पे देखिए जोकोजी के लिए है, और एक बेबी पूल के लिए एक लगा हुआ है ऊपर, और एक पूल के लिए है। स्विमिंग पूल के लिए तो 2 चाहिए अपने को। नहीं, compulsory। अभी जो और है एक मोटर आपको जैकुजी जोकोजी- के लिए 2 है, हाँ, और 2 नॉर्मल है। बेबी पूल के लिए एक है और एडल्ट पूल के लिए एक जी है। जी जी। सर, अभी आपको- ओके, मैं- नहीं पर आप कितनी connection मोटर ऐसे बोल रहे हैं कि करेंगे। हम लोग चेक करेंगे अगर वो चेंज करना पड़ी तो? 3 तो चाहिए अपने को। 3 चाहिए, पर उसमें अगर जो एक मिनट, one अगर जो minute, रिपेयर आप नहीं लोग हुई, कौन सी उसमें चलाएंगे क्या सर? एक मिनट जी। नहीं मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो रिपेयर नहीं हुई तो हमको फिर 3 मोटर लेनी पड़ेगी। जी तो जैसे आपने इसमें अभी 45,000 एक मोटर का लिखा है, तो 3 मोटर मतलब अगर हम 2 और लेंगे तो फिर 90,000 से आपका जो है वो एस्टिमेट शूट अप होगा, ऊपर जाएगा। हाँ जी सर, हो जाएगा।
वो तो मोटर कॉस्ट है, मैं तो बोल रहा हूँ 90% तो उससे हो जाएगा, 10% चार्जेस नहीं। नहीं, अगर सपोज नहीं हुआ है, सपोज हमने बोल रहे हैं कि 3 मोटर हमारे काम नहीं कर रहे अभी, आप बोल रहे हैं कि 3 मोटर सर्विस कर देंगे, तो सपोज कल वर्स्ट केस सिनेरियो दैट नन ऑफ द 3 मोटर्स कैन बी रिपेयर्ड, Okay. so you are going to get 3 new motors Then we have to at go the for the same new cost only, right? Yes, yes. This cost will not shoot Yes, up, yes, sir. correct? Sorry? ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर एडिशनल 2 मोटर और लगी तो भी आपका जो टोटल है वो जो है 12 लाख जो आपने दिया है 81, वो शूट अप होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा क्योंकि 45,000 का एक मोटर है सर उसमें। आपने 45 का एक लिखा है, पर अगर आप बोल रहे हैं कि बाकी मोटर भी अपने को चेक करना पड़ेगा। हाँ, नहीं इसमें देखिए सर, मैं एक मोटर का लिखा हूँ अप्रॉक्स आपको चाहिए तो आपको प्लस ऐड ऑन हो जाएगा, तो यानी कॉस्ट बढ़ेगा उसमें। हाँ, कॉस्ट बढ़ेगा बिल्कुल। अगर नया मोटर लेके आ रहा हूँ ना सर आपको, मैं आपको 1 मोटर का क्वांटिटी का प्राइस दिया हूँ। अच्छा, क्योंकि इसमें मेरे को रिपेयर का कॉस्ट नहीं दिख रहा है सर। जी सर, 5,000 रुपीज पर ये डाला है मोटर सर्विस, हाँ 8,000 रुपीज डाला है। अच्छा, ये बोल रहे हैं अगर सर आपको सर वो संदीप वो एक्वाटिक का जो अपना एक्वाटिक नहीं, अपना जो 3 मोटर्स जो रिपेयर करने के पड़ेंगे वो तीनों 3 HP के है क्या? नहीं ना? नहीं, 2 HP 3 HP है इसमें। तो अप्रोक्सीमेटली कितना बढ़ेगा कॉस्ट? अगर तीनों मानो एक चल रहा है, तीनों रिपेयर करने हैं बट वो अनरिपेयरेबल है, जैसे कि नहीं हो सकता है, तो कितना कॉस्ट बढ़ेगा? एक मैम देखिए, वो आपको रिपेयर में हो जाएगा, 90% मैं बता रहा हूँ रिपेयर में हो जाएगा। उसमें आपको देखिए 10,000 के अंदर ही हो जाएगा, 8 to 10,000 रुपीज एक मोटर के लिए हो जाएगा। वो ये हो जाएगा तो अच्छी बात है, फिर ये कोटेशन विल होल्ड ट्रू इन केस वी जी। अगर नहीं आपको दूसरा कंपनी का चाहिए तो भी 30,000 का मोटर भी रहता है, 25 का भी रहता है, लेकिन आपके वहाँ पे एक्वास्टार है बोल के मैं एक्वास्टार का आपको per unit. per unit. So the cost that you have considered here is for the repair of 3 motors or 4 motors, right? Yes, yes. So आप बोल रहे हैं कि अगर ये worst case scenario if the 3 motors doesn't work, so you have to buy a new one and the cost will escalate by that much. Yes, yes, sir. Okay, what is the approximate cost of one motor? 45. So which means approximately another 90,000 or 1 lakh will get added to this. Yes, yes, sir. 1.5 तक बढ़ा है. मैं आपको शायद उसमें रिपेयर का शायद ऐड कराऊंगा। रिपेयर आपने 32,000 लिया हुआ है, so even if I consider 45, so 1.5 means 1.2 तक गिरेगा, वही मैं बोल रहा हूँ 1 लाख तक बढ़ेगा। जी सर जी। So 1 lakh there is an escalation which is possible. Escalation will be there. Okay. लेकिन आपको 1 लाख नहीं होगा, मैं तो 90% नहीं, मैं जस्ट नहीं क्या है संदीप जी, ये पूरा अपना सोसाइटी का है, हमको हर चीज इवैल्यूएट करनी पड़ती है, इसके लिए थोड़ा डीप में पूछ रहे, क्योंकि अपने घर का काम नहीं है, घर का काम है तो कोई इतना डीप नहीं पूछेगा, सोसाइटी का काम है, इसके लिए हर चीज के लिए जवाब देना पड़ता है, सब चीज डॉक्यूमेंट भी करना हमको क्या है, समझ हमको गया। यहाँ पे सबको जवाब देना पड़ता है, तो इसीलिए हम सब कुछ समझ गया, समझ आपने गया। जो कोड दिया है क्या आप ये कोड के अंदर काम करेंगे आप, या वो हमको कंफर्म करना है, बिकॉज देयर विल बी प्लसेस एंड सही है, माइनस। सही। कुछ वेंडर्स ने बोला है जो बिल्कुल, हमने बिल्कुल। कोड दिया है भले उसमें कुछ भी हो जाए हम करेंगे, भले आपको नया लाना है, जी, द जी। कॉस्ट विल नॉट गो अप, ठीक है, दैट वाज फ्यू वेंडर्स हु Okay, कमिटेड जी। लाइक दैट, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि ये जी, जी, कॉस्ट सर। विल गो अप द इन केस इट डजंट हैपन, तो वो है अपडेट। या ओके फाइन। सो मैं एक चीज और बोल रहा हूँ कि इसमें जितना भी आपके लीकेजेस हैं या वो भी है, आप सब यू विल चेक एवरीथिंग राइट, और इज देयर एनी Yes, कॉस्ट yes, इन्वॉल्व sir, yes. अगेन इन दोस पाइपलाइंस का भी, अगर वहां पे बैक फ्लश जो करना है आप लोग सब करेंगे? हम कर लेंगे, इसमें पूरा हो जाएगा। Okay, so the only cost what I see escalation in terms of plumbing is will be on account of the motors, new motors that needs to be purchased in case the existing motors Yes, are yes. not getting serviced, right? Yes. Okay, fine.
अच्छा, द नेक्स्ट वन इज ये जो स्टैंड बाय के लिए ये नया स्टैंड बाय। सो नाउ कमिंग डाउन टू इलेक्ट्रिकल, ये जो लाइट्स हम सब कुछ नया लगाएंगे, करेक्ट? ऑल द लाइट्स विल बी चेंज्ड। हाँ सर, मेन प्रॉब्लम वहाँ पे लाइट्स का ही है, वो वाले लाइट्स नहीं, उसको वो निकाल के हाँ। अपन ये प्लास्टिक वाले लगा देंगे, उसमें जो रेगुलर वाले रहते हैं ना, हाँ। वो लगा देंगे। अच्छा, तो लाइट्स आप जो यूज करेंगे ये विच ब्रांड, कौन से ब्रांड के होंगे ये? ब्रांड इसमें 2-3 ब्रांड्स हैं, इसमें एक्वास्टार का भी है आपको, और एक्वास्टार को इसमें नहीं लगाएंगे। हाँ। अहमद, वो परसों अपन लाए से कौन सा था? SR ब्रांड, SR। SR ब्रांड है इसमें। एक्वास्टार का क्यों नहीं लगा सकते? ये एक्वास्टार चाइना वाली एक है जो अभी एक्वास्टार का सर उसको पूरा ड्रिलिंग करके बिठाना पड़ेगा फिर अंदर। ओके। जी, अभी ये जो लाइट हम लोग देंगे, इसका इजी आपको 2 ईयर से वारंटी भी रहेगा इसका, कभी भी रिप्लेसमेंट हो क्या। अभी आप नहीं, हम लोग एक्वास्टार में अभी- जाओगे अभी हम लोग यूज कर रहे हैं जी, चाइना वाली जो SR करके है, चाइना का ब्रांड है, बहुत अच्छा है। इसमें इंजरी के चांस 0 है। अच्छा, ओके। सो सारे लाइट्स जितने भी हैं, वेदर इट इज एडल्ट पूल, बेबी पूल, जैकुजी, सब में चेंज हो जाएगा, राइट? जी सर। जैकुजी में एक वाला गड़बड़ जैकुजी में नहीं। संदीप इन्फॉर्म कर दो। हाँ, वो जैकुजी में एक नहीं होगा सर, एक तो पुराना वाला वही स्टार्ट हो जाएगा, Okay. बिग पूल में सारे चेंज हो जाएंगे। आपने जैकुजी में 2 लाइट्स का बोला हुआ है दैट विल चेंज। हाँ नहीं, जी 2 का वो cost हो जाएगा, क्या है? लेकिन जो पुराना वाला है उसी टाइप में हो जाएगा वो, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर प्लेस हुए इसके अंदर जैकुजी में, वो सेम वैसे वाला लगा देंगे। कटिंग गड़बड़ हो जाएगा कटिंग। हाँ, उसमें ओके। ओके, तो नाउ कमिंग डाउन द एंटायर वर्क जो भी हमारा है, ये टोटल कितने दिन में वो खत्म हो जाएगा? राइट फ्रॉम से प्रोवाइडेड इट इज से sunny throughout, तो नॉर्मली व्हाट इज द ड्यूरेशन दैट यू विल नॉर्मली टेक? अहमद सर, हेलो अहमद, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे बोले? मान के चलिए थोड़ा लेबर प्रॉब्लम, वेदर प्रॉब्लम, वेदर सपोज ये वेदर वो इज नहीं, पहले यूनिफॉर्म, छोड़ के बोल रहे हैं ना, अगर कंप्लीट वेदर अच्छा है तो कितने दिन लगेंगे? assuming that the weather is fine. 25 डेज। हमने लिखा कितना उधर, हम लोग कितना लिख के हैंडओवर करें, हैंडओवर डेज 25 डेज में हो गया। नहीं, हम लोग ने 50 डेज बोला है शायद। नहीं उधर 25 50 है सब। हमारा 50 लिखा हुआ नहीं, है। उन लोगों के हिसाब से आपका हो जाएगा मैडम, 35 to 45 डेज में हो जाएगा, लेकिन 50 में पकड़ के चलो। 50 ज्यादा है, मैं तो कोशिश करूंगा 1 महीने के अंदर, जी 20 से 25 डे के अंदर साइट खत्म करके दूसरे काम पे फोकस करेंगे, लेकिन मैक्सिमम पकड़ के चलिए आप। अच्छा, तो दूसरी बात लास्ट वन इज दैट कि जो जब हम आपको काम दे रहे हैं, सो व्हाट इज द गारंटी और वारंटी दैट यू गिव? वेदर विल यू गिव इट फॉर एन ईयर, 2 years, 3 years? 1 year सर। 1 year आप देंगे, ओके। और दूसरी बात ये है जी कि विल यू आल्सो बी टेकिंग केयर ऑफ द मेंटेनेंस पार्ट ऑफ इट? यस सर। ओके, मीन्स आपका खुद का होता है मेंटेनेंस, आप खुद अपने मैन पावर से नहीं, करवाएंगे हमारा कैसे, या खुद का। थर्ड पार्टी को देंगे? नहीं, खुद खुद का होता है खुद का हमारा। देंगे? अभी मायोम सापरा हाँ। जी मंत्री यूरोपिया Okay. सब में है, अभी इंटरनेशनल स्कूल्स में है। वो Okay. पिक्चर एकेडमी में मेरा ही है, गच्चीबोली वो पिक्चर एकेडमी है सर। Okay. डेली 500 to 600 मेंबर्स आते हैं उसमें, वो भी मेरा ही है। ओके, ओके। अभी यहाँ पे बेंडागुड़ा भी अहमद का ओन पूल भी है वहाँ पर, उसमें भी डेली होता है। कितना होगा? मीन्स नॉर्मली व्हाट इज द मेंटेनेंस कॉस्ट दैट विल कम पर मंथ इंक्लूडिंग केमिकल्स ऑल? 25,000।
25,000 ओके। और नॉर्मली मेंटेनेंस जो होता है ये डेली आके करते हैं, व्हाट इज इट लाइक? इंक्लूडिंग द केमिकल daily. Yes, including chemical 25,000. Only the manpower will come work. They will do work and go, sir. हाँ, so वहाँ पर रहेगी नहीं 8 hours. 25,000 plus they will come daily, right? Yes, daily, weekly once off. वीकली वंस ऑफ रहेगा, प्लस दे विल कम डेली आएगा। Yep, डेली yep. आएगा, हमारा बंदा वाटर लेवल चेक करेगा, केमिकल डालेगा, ब्रशिंग करेगा, जाएगा। डेली बंदा, 1 day ऑफ। ओके। नॉर्मली ये कितना टाइम लगता है उनका मेंटेनेंस का? जो बंदा आता है तो उस टाइम पे तो पूल बंद करना पड़ेगा, यू हैव टू 1 क्लोज hour. इट फॉर यूसेज, राइट? Yes, sir. 2 hours करके रखिए आप. 2 hours daily you have to close it, right? Yes. ओके फाइन। वो आपके पूल के टाइमिंग से के हिसाब से सेट कर लेगा, जो टाइम पे आप जी, आपका. हाँ, तो लीन पीरियड अपार्टमेंट्स की मान के चलिए, जो टाइम प्री टाइम पे आएगा, जी. जो टाइम पे लोग स्विमिंग नहीं कर सकते वो टाइम पे आके सेट कर लेगा। जी, समटाइम ही विल कम मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, कभी इसको आफ्टरनून में आना पड़ेगा. उसके हिसाब से आएगा. अभी जैसे पानी अभी डल दिख रहा है, थोड़ा नाइट में आके थोड़ा केमिकल डालना पड़ेगा, फिर अर्ली मॉर्निंग आके उसको क्लीनिंग करना पड़ेगा सर्विस. ओके, जी. ठीक है, ओके। सो संदीप जी, मैं वन मोर क्वेश्चन इज दैट अभी आपने जो बॉटम लाइन दिया है इट इज क्लोज टू व्हाट अबाउट 12.7 lakhs प्लस जीएसटी, यस. ओके। तो इसमें और कुछ गुंजाइश है? जी नहीं सर, गुंजाइश नहीं. वही अगर मोटर्स वो अगर निकल गए तो आपको वहां पे पैसे बच जाएंगे उसमें. आपको अप्रॉक्स में उसमें आपको लाइक 70,000 तक तो शायद कम, 50 to 70,000 तक थोड़े चीजेस में हो जाएगा उसमें. जैसे मोटर गया 45,000 निकल जाएगी उधर आपके. 45 मीन्स वहाँ पे 1 लाख रुपीज निकल जाएंगे 3 मोटर्स का. आप ये मान के चलिए, हम आपको जो कॉस्ट दिए वो सिर्फ हमको मेंटेनेंस चाहिए बोल के वो कॉस्ट दे दिए. आप ऐसे सोसाइटी को फॉर श्योर बोल भी सकते हैं. हमारा जो हम लोग का मेन फोकस क्या है, हमको मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस मिलना है. ओके. ओके, और रिलेशनशिप, सेकंड इज रिलेशनशिप. Anything else? Just 1 minute, sir. So संदीप जी आप आएंगे कि अहमद जी आप आएंगे? एक्चुअली मतलब कौन रहेगा, कैसा रहेगा आपका मोड ऑफ वर्किंग लाइक? दोनों रहेंगे मैम, दोनों रहेंगे. अच्छा. कभी वो रहेगा, कभी मैं रहूंगा, कभी दोनों साथ में आएंगे. नहीं, मैं सोचा कि कुछ और जी, टीम है आपकी, मतलब जो who will be assisting you, कि ऐसा कुछ है कि आप ही नहीं, आए? ऐसा है, देखिए सिविल वर्क के वास्ते मैक्सिमम मैं आऊंगा. Okay. मैकेनिकल के वास्ते पूरा संदीप आएंगे. ओके, सिविल वर्क का टीम मेरे साथ चलेगा, मैकेनिकल का टीम संदीप के साथ चलेगा, इलेक्ट्रिकल का टीम संदीप के साथ चलेगा, लेबर वाला जो टीम होता है, सुपरवाइजर्स, जो वाटरप्रूफिंग स्टाफ, ये सब मेरे साथ चलेंगे. मैं इनको लेके घूमता हूँ, वो मेंटेनेंस वालों को लेके घूमते हैं. ओके, गॉट इट. और संदीप जी आप ट्रेनिंग भी देते हैं ना पूल में? ये सब मेरा मेन बेस ट्रेनिंग था मैम पहले. अच्छा. अभी पूरा मेंटेनेंस सभी. करेक्ट. मीटिंग एंड होगी. एक और लिंक भेजो, इनवाइट के. आर वी डन? भेजो क्या? हाँ ठीक है, फोन पे कर लेंगे. ठीक है. ओके.